Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. In today's video, I am going to show you how to write a Prezi, and the Prezi writing that I am going to do is from the question paper of 2023 Class 12 Board Exam West Bengal Board. आज मैं आपको Prezi writing सिखाऊंगी और जो Prezi writing मैं करके दिखाऊंगी वो क्लास 12 के 2023 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. बिल्कुल देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं. इन प्रेसी राइटिंग यू हैव टू समराइज द पैराग्राफ दैट इज गिवन. जो पैराग्राफ दिया गया है उसको संक्षिप्त में करके लिखना पड़ता है प्रेसी राइटिंग में. यू हैव टू मेक इट 1/3 ऑफ द साइज. उसका जो भी साइज है पैराग्राफ का उसका 1/3 बना के लिखना पड़ता है. एंड नो इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी मिस्ड. कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु मिस नहीं करना चाहिए. एंड नथिंग एक्स्ट्रा शुड बी रिटन. कुछ भी अतिरिक्त लिखने की कोई जरूरत नहीं है. दिस हैज टू बी डन विद ग्रेट केयर. ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है. सो द पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज एज फॉलोज. तो जिस पैराग्राफ का हम प्रेसी राइटिंग करेंगे वो ऐसे है. All learners from babies to grandmothers learn better with stories. Stories are energizers. When someone says, "Let me tell you a story," listeners perk up their ears and smile. Even hard truth can be taught easily through stories. Stories told and read at home and school both educate and entertain. Using stories in the classroom is fun, but the activity should not be considered trivial or frivolous. Indeed, there is strong support for telling story in the method of teaching. Stories, whether they are fairy tales, folk tales, fables or others, based on real life incidents experienced by students themselves, can help learners appreciate and respect the culture and values of various people. Stories can also lead to harmony and understanding. Stories from around the world are excellent to use in the classroom. But teachers also need to use stories from the students' own culture and heritage. Using local or national stories ensure that the students know the background, culture, or may even know the story already. This familiarity helps the students reduce stress and anxiety in the classroom. तो ये था पैराग्राफ जिसका प्रेसी हमको लिखना है. The paragraph contains 180 words. इस पैराग्राफ में 180 words है. So your prezi should contain 60 to 65 words. आपके प्रेसी में 60 to 65 words होने चाहिए. तो पहले सेंटेंस को देखते हैं. All learners from babies to grandmothers learn better with stories. बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं अगर कहानी के माध्यम से सिखाया जाए. This sentence can be shortened and written. इस वाक्य को छोटा करके लिखा जा सकता है. All learners learn better from stories. सभी विद्यार्थी कहानियों से अच्छा सीख पाते हैं. अगले दो वाक्यों को देखते हैं. Stories are energizers. कहानी इंसान को ऊर्जा देता है. When someone says, "Let me tell you story," listeners perk up their ears and smile. जब कोई कहता है चलो एक कहानी सुनाते हैं तो सुनने वाला अपने कान खड़े कर लेता है और मुस्कुराता है. इन दोनों वाक्यों को एक साथ किया जा सकता है और लिखा जा सकता है. People become happy and energized when someone proposes to tell a story. अगले दो वाक्यों को देखते हैं. Even hard truth can be taught easily through stories. मुश्किल से मुश्किल सच को कहानी के माध्यम से बहुत ही आसानी से सिखाया जा सकता है. Stories told and read at home and school both educate and entertain. जिन कहानियों को घर में और स्कूल में सिखाया जाता है और बोला जाता है वो शिक्षा भी देते हैं और मनोरंजन भी करवाते हैं. तो इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं. Hard truth can be taught easily through stories at home and school, which both educate and entertain. तो इन दोनों वाक्यों में जो सारी बातें थी वो सारी बातें इस एक वाक्य में हो गई. अगले वाक्य को देखते हैं. Using stories in the classroom is fun, but the activity should not be considered trivial or frivolous. क्लास में कहानी सुनाना बड़ा मजेदार है लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए. यानी कि ये शिक्षा का भी एक माध्यम है. तो ये बात पिछले वाक्य में भी कही गई है कि कहानी के द्वारा शिक्षा और मनोरंजन दोनों ही किया जा सकता है. तो इसको केवल मनोरंजन न समझा जाए. तो इसीलिए ये वाक्य लिखना जरूरी नहीं है. ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है. अभी हम अगले वाक्य को देखते हैं. Indeed, there is strong support for storytelling in the method of teaching. पढ़ाने में कहानी बोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. Stories, whether they are fairy tales, folk tales, fables or others, based on real life incidents experienced by students themselves, can help learners appreciate and respect the culture and values of various groups of people. कहानियाँ चाहे वो कैसी भी हो, फेरी टेल्स हो यानी कि परी कथा, फोक टेल्स यानी कि लोक कथा, फेबल्स यानी कि वो कहानियाँ जिसमें पशु चरित्र होते हैं, और अदर्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ या कोई ऐसी कहानी जो किसी के
जीवन पर आधारित होती है या कोई ऐसी कहानी जो छात्र ने खुद अनुभव किया हो, ये सारी कहानियां हेल्प कर सकती हैं जो सीखने वाला विद्यार्थी है उसको अलग अलग तरह के लोगों के संस्कृति को सम्मान करने में। स्टोरीज कैन ऑल्सो लीड टू हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। कहानियों से लोगों के अंदर एकता हो सकती है और अंडरस्टैंडिंग, समझदारी हो सकती है। इन सारी बातों को एक वाक्य में कहा जा सकता है। Stories of all kinds can help learners appreciate the cultures of various communities, which creates harmony. हर तरह की कहानियों से विद्यार्थियों को मदद मिल सकती है कि वो अलग अलग संस्कृतियों को सम्मान करे और इससे एकता बनी रहती है। तो अभी हम आखिरी 3 वाक्यों को देखेंगे। स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर एक्सीलेंट टू यूज इन द क्लासरूम, बट टीचर्स ऑल्सो नीड टू यूज स्टोरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओन कल्चर एंड हेरिटेज। पूरी पृथ्वी के बारे में कहानी सुनाना कक्षा के लिए बड़ा ही लाभदायक है, लेकिन शिक्षक को बहुत बार विद्यार्थी के अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में भी कहानी सुनाना चाहिए। यूजिंग लोकल और नेशनल स्टोरीज एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स नो द बैकग्राउंड, कल्चर और मे इवन नो द स्टोरी ऑलरेडी। लोकल यानी कि जहाँ पे वो रहता है वहीं के बारे में जो कहानी होती है, उसी देश के बारे में जो कहानी होती है, वो कहानी सुनाने से बच्चा उस पृष्ठभूमि को जानता है, उस संस्कृति को जानता है और बहुत बार उस कहानी को भी जानता है। दिस फेमिलियरिटी हेल्प्स द स्टूडेंट्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन द क्लासरूम। ये जो परिचित भाव है, इससे क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर जो दबाव का भाव होता है वो कम हो जाता है। तो इन तीनों वाक्यों को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। Along with world stories, the student should also be told local stories to reduce stress। तो ये था छोटा सा वाक्य जिसने इन आखिरी तीनों वाक्यों का काम कर दिया और ये प्रेसी था 65 शब्दों का। तो ये परफेक्ट था। इस तरह के प्रेसी लिखने पर आपको परफेक्ट मार्क्स मिल सकते हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यू कैन प्रैक्टिस प्रेसी राइटिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पैसेजेस। इस तरह के पैसेज से आप प्रेसी राइटिंग का प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। एंड ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो टुडे। आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। कीप रीडिंग, राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।